Hello viewers, in the last video we discussed about nomenclature, classification and structure of lipids. In this lecture we will discuss the fatty acid synthesis. There are mainly three steps in synthesis of fatty acid. First step is chain initiation step, second step is chain elongation step and third step is condensation step. We will discuss all these steps one by one. This is the overview of fatty acid synthesis. Here in the chain initiation step, acetyl coenzyme A, in the presence of acetyl coenzyme A carboxylase, form malonyl coenzyme A. This malonyl coenzyme A again bound with ACP and form malonyl ACP. In the sideway here, acetyl coenzyme A forms acetyl ACP by binding with ACP. These acetyl ACP and malonyl ACP undergo condensation step and decarboxylation occurs here and form acetoacetyl ACP. All these steps are carried out by the enzyme complex fatty acid synthase. This fatty acid synthase is a enzyme complex. A large enzyme consists of 6 or 7 units of different enzymes, and at the last it forms the butyryl ACP after reduction step. After butyryl ACP, this cycle repeat again from this malonyl ACP step, and in one cycle 2 carbon attach. मीन्स जैसे ही एक साइकिल कंप्लीट, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन जो फर्स्ट जो कंपोनेंट बनाया आफ्टर फर्स्ट साइकिल देर आर 4 कार्बन्स. इफ नेक्स्ट साइकिल रिपीट्स then instead of 4 then it become 6 carbon. So in each cycle 2 carbon will attach by attaching acetyl coenzyme A, because acetyl coenzyme A consists of 2 carbon units. So in each cycle 2 carbon units is attached. Suppose if we want to form a 16 carbon fatty acid chain, then we have to repeat this cycle at 7 times, because in 7 times we will got the these particular fatty acids. So this repetition step is called as chain elongation step. This last step is condensation step that results in the formation of fatty acid. First requirement for fatty acid synthesis is acetyl coenzyme A. As in the respiration, we saw that acetyl coenzyme A is synthesized in माइटोकॉन्ड्रिया. जैसे कि हमने क्रैब साइकिल में पढ़ा था, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ पायरुवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पे जो पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है पीडीएच एंजाइम की प्रेजेंस में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम से, तो वहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए की सिंथेसिस हो रही है. जबकि जो फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होती है, यहाँ साइटोसॉल में होती है. तो उसके लिए क्या है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए क्या है, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है दैट शुड ट्रांसपोर्ट आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. बट जो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये माइटोकॉन्ड्रिया में इसके लिए ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल नहीं होते. दैट्स व्हाई इट cannot transport out of mitochondria as in the form of acetyl coenzyme A. So through citric acid cycle it will get converted into citrate. That's why the many intermediates of citric acid cycle are involved in the anabolic reactions also. That's why citric acid cycle is also known as amphibolic, because citrate is also used here in synthesis of fatty acids. So here acetyl coenzyme A get converted into citrate by condensing with oxaloacetate. This mitochondrial membrane has transporter for the citrate, so this citrate transported out in the cytosol. Here this citrate again decondensed in the to form acetyl coenzyme A and oxaloacetate, and this acetyl coenzyme A then undergo fatty acid synthesis. So in this way acetyl coenzyme A transport out of cytosol with the help of conversion into citrate. So this is first requirement of the fatty acid synthesis step, means acetyl coenzyme A transport into the cytosol. Second step is after that the fatty acid synthesis is starting. So for the first step after acetyl coenzyme A transport is chain initiation step. During chain initiation step there is a production of malonyl coenzyme A, or during the production of malonyl coenzyme A
this formation of malonyl coenzyme step is the rate limiting or committed step of the fatty acid synthesis because it is a irreversible two step reaction. जो ये रिएक्शन होगी मेलोनाइल कोएंजाइम के प्रोडक्शन की, दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट इज मींस यहाँ से अगर ये मेलोनाइल कोएंजाइम में सिंथेसाइज हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये किस में जाएगा, फैटी एसिड की सिंथेसिस ही होगी. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फर्स्ट कमिटेड स्टेप इन फैटी एसिड सिंथेसिस. सो हियर इन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एसिटाइल कोएंजाइम में reacts with carbonic acid in the presence of ATP. The enzyme which catalyzes this reaction is acetyl coenzyme carboxylase and it forms malonyl coenzyme A. The malonyl coenzyme provide 14 out of 16 carbon atom of a palmitate. Means जितने भी हम कार्बन एटम का, सपोज यहाँ पे 16 कार्बन एटम का हम जो फैटी एसिड है वो सिंथेसाइज हो रहा है तो वो पाल्मिटेट है, तो उसमें क्या है जो 14 जो प्रोवाइड होंगे वो दैट इज मेलोनाइल कोएंजाइम में प्रोवाइड करेगा, और जो 2 होंगे वो किससे, एसिटाइल कोएंजाइम ए से. द रिएक्शन द रिमेनिंग रिएक्शंस, इसके बाद जो रिएक्शंस होंगी, उसके बाद जो सारी रिएक्शंस होंगी दैट आर कैटलाइज्ड बाय द मल्टीफंक्शन एंजाइम फैटी एसिड सिंथेज. इसके बाद यहाँ तक जो रिएक्शन है ये रिएक्शन किसने कैटलाइज की है, एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज ने. इसके बाद जितने भी रिएक्शंस होंगी दैट विल कैटलाइज्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स एंजाइम is known as fatty acid synthase or also known as FAS complex. It is called a complex enzyme because it contains all these enzymes in it. These are 6 or 7 enzymes present in this. This is the first component is acyl carrier protein. This is abbreviated as ACP. What is the function of this unit? This carries the acyl group in thioester linkase. Second is इन सभी यूनिट्स को ध्यान से देखना. अभी जो नेक्स्ट हम सिंथेसिस के स्टेप करेंगे उसमें ये सारी यूनिट एब्रीवेटेड फॉर्म में होंगी. एसाइल कोएंजाइम में एसीपी ट्रांस एसिटाइलेज और एब्रीवेटेड एज एटी. इट ट्रांसफर्स एसाइल ग्रुप, जैसे कि नाम से ही है एसाइल कोएंजाइम में एसीपी ट्रांस एसिटाइलेज इस ट्रांसपोर्ट एसाइल ग्रुप फ्रॉम कोएंजाइम में. जो कोएंजाइम ए होगा उस पे से जो एसाइल ग्रुप है उसको ट्रांसफर करेगा किस पे, जो कि अल्फा कीटोसाइल से होगा उसके ऊपर इसके उसका जो सिस्टीन ग्रुप होगा उसके ऊपर इसके एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा. तो मींस एटी की क्या फंक्शन हुआ, ये जो एसाइल ग्रुप है एसिटाइल कोएंजाइम में उसको ट्रांसफर करेगा सिस्टीन रेजिड्यू ऑफ केएस पे. उसके बाद नेक्स्ट है मेलोनाइल कोएंजाइम में एसीपी ट्रांसफरेज, कि ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा मेलोनाइल ग्रुप को. ये जो देखो फर्स्ट जो यूनिट है ये इनको ट्रांसफर कर रही है, यहाँ पे एसाइल कोएंजाइम में था तो ये इसने किसको ट्रांसफर किया, एसाइल को. ये मेलोनाइल कोएंजाइम है तो ये किसको ट्रांसफर, ये ट्रांसफरेज है तो मेलोनाइल कोएंजाइम को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम कोएंजाइम ए टू एसीपी. उसके बाद नेक्स्ट है केएस बीटा कीटो असाइल एसीपी सिंथेज. ये क्या करेगा, कंडेंस करेगा एसाइल एंड मेलोनाइल ग्रुप. ये जो एसाइल ग्रुप है यहाँ पे और ये जो मेलोनाइल ग्रुप है इन दोनों को कंडेंस करेगा एंड फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप. एंड देन नेक्स्ट यूनिट इज बीटा कीटो असाइल एसीपी रिडक्टेज एब्रीवेटेड एज केआर. ये क्या करेगा, रिड्यूसेस बीटा कीटो ग्रुप. यहाँ जो कंडेंसेशन हुआ है इनका जो बनी है बीटा कीटो हाइड्रोक्सिल, देन दिस केआर रिड्यूस दैट बीटा कीटो ग्रुप फ्रॉम बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप. बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल डिहाइड्रोजनेज, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी तो किसका, H2O का रिमूवल होगा फ्रॉम बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी, और उसके हाइड्रोजन एटम के रिमूवल की वजह से यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी. Last unit of this enzyme is enoyl ACP reductase abbreviated as ER. This is the final reduction reaction, reduces double bond and forming saturated acyl ACP. Saturated क्योंकि फर्स्ट जो ये फैटी एसिड सिंथेसाइज होंगे वो सैचुरेटेड फैटी एसिड सिंथेसाइज होंगे, तो यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड बना था उस डबल बॉन्ड को यहाँ पे जो ER एंजाइम है वो रिड्यूस कर देगा एंड फॉर्म द सैचुरेटेड एसाइल ACP.
ये जो सारी यहाँ पे एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखे हुए हैं, दिस इज द टोटल फैटी एसाइल सिंथेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। ये जो हमने सारी एब्रीवेशन अभी लास्ट में की है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए रिएक्शन में एंटर करता है, कोएंजाइम ए रिमूव हो जाता है, तो जो फैटी एसिड सिंथेज है उस पे क्या, इसकी जो एसाइल ग्रुप है वो ऐड हो जाता है। और ये हमने लास्ट में देखा था ना, एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है कौन सा एंजाइम, एसाइल कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज। ट्रांसफर एसाइल ग्रुप फ्रॉम कोएंजाइम ए टू सिस्टीन रेजिड्यू ऑफ केएस। ये यही ट्रांसफरेज रिएक्शन है कि जो केएस का सिस्टीन ग्रुप है, ये एस है, यहाँ पे सिस्टीन ग्रुप के साथ में इस एसाइल को ट्रांसफर करता है। ये काम किसका है, इस एसिटाइल ट्रांसफरेज का, ये करेगा इस काम को। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मेलोनाइल कोएंजाइम ए। तो ये मेलोनाइल कोएंजाइम में फिर से रिएक्शन में एंटर करता है, कोएंजाइम में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे फिर किसका काम आता है, सेकंड जो हमने पढ़ा था अभी स्टेप, इसमें ट्रांसफर मेलोनाइल ग्रुप फ्रॉम कोएंजाइम ए टू एसीपी, मेलोनाइल ट्रांसफरेज। ये जो एंजाइम है मेलोनाइल ट्रांसफरेज, ये क्या करेगा, ये मेलोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा, ये जो मेलोनाइल ग्रुप है इसको यहाँ पे एसीपी के सिस्टीन ग्रुप पे अटैच कर देगा। कौन करेगा, ये मेलोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो उसके बाद क्या है, यहाँ नेक्स्ट जो स्टेप होगा, ये तो है फैटी एसिड सिंथेसेस, इसको हम बोलते हैं फैटी एसिड एक्टिवेशन भी। फैटी एसिड सिंथेज जो कॉम्प्लेक्स है उसका एक्टिवेशन हुआ है बाय द एसिटाइल और मेलोनाइल ग्रुप। देन आफ्टर दैट रिएक्शन इज कंडेंसेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। कंडेंसेशन में क्या होगा, ये जो एसाइल ग्रुप है इसका किसके साथ कंडेंसेशन होगा, इस मेलोनाइल ग्रुप के साथ में। और इसको कौन करेगा, ये जो केएस है, बीटा कीटो एसाइल सिंथेटेज, ये एंजाइम इन दोनों का क्या करेगा, कंडेंसेशन एंड फॉर्म द प्रोडक्ट बीटा कीटो ब्यूटेराइल एसीपी। आफ्टर दैट रिडक्शन ऑफ बीटा ग्रुप, जो बीटा ग्रुप है उसका रिडक्शन होगा। और वो रिडक्शन में क्या देखा था, जो बीटा ग्रुप का रिडक्शन होगा, रिड्यूसेस बीटा ग्रुप। जो के आर एंजाइम है अल्फा कीटो एसाइल रिडक्टेज, रिड्यूसेस बीटा कीटो ग्रुप। तो यहाँ पे जो बीटा कीटो ग्रुप को रिड्यूस करेगा, ये जो के आर जो एंजाइम है ये इस रिएक्शन को टेक्स प्लेस करेगा, रिडक्शन होगा इसका। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, ये इनका रिडक्शन हो गया है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन कौन करेगा, एच डी, ये हाइड्रोक्सी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, बीटा हाइड्रोक्सी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो ये इसका रिडक्शन करेगा, तो NADH से NADP प्लस की फॉर्मेशन होगी एंड फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइल ACP। यहाँ पे क्या है, रिडक्शन के ड्यूरिंग क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये है रिमूव H2। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये रिमूव H2 फ्रॉम बीटा हाइड्रोक्सिल ACP एंड क्रिएटिंग है डबल बॉन्ड। यहाँ पे H2O का वो निकल गया और यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था यहाँ पे, और वो सिंगल बॉन्ड क्या बन गया, इसमें रिडक्शन की वजह से डबल बॉन्ड बन गया है। उसके बाद ये क्या बन गया, ब्यूटोनाइल ACP, ट्रांस ब्यूटोनाइल ACP। देन इन द नेक्स्ट स्टेप रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है रिडक्शन होगा, NADPH से NADP बना। और ये किसने, इस रिडक्शन को कौन करेगा, दिस ER एंजाइम, इनोइल रिडक्टेज एंजाइम। और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो रिमूव हो जाएगा। देन ट्रांसलोकेशन ऑफ ब्यूटेराइल ग्रुप सिस टू द KS। तो जो ये यहाँ पे ब्यूटेराइल ग्रुप बना है ये वापस से किस पे चला जाएगा, इस KS यूनिट पे अटैच हो जाएगा। और फिर से इसके ऊपर क्या है, फिर से दो मेलोनाइल कोएंजाइम एक यूनिट अटैच होंगी। और इस टाइप से ये साइकिल जब तक हमारा जो डिजायर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का फैटी एसिड है वो नहीं बन जाता, तब तक ये साइकिल रिपीट होगी। और ये साइकिल कौन सी होगी, चैन इलोंगेशन साइकिल। द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ऑफ एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, इसको हम थ्योरेटिकल एक बार वही उन्हीं स्टेप्स को रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा था कि जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट है एसिटाइल कोएंजाइम में, वो इज ट्रांसफर टू ACP। जो फैटी एसिड सिंथेसिस का ACP ग्रुप है उस पर ट्रांसफर हो रहा है, जो हमने सेंटर में देखा था। और इसको कौन कैटालाइज कर रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ACP, जो कि एक यूनिट है इसी की, जिसको हम AT से भी डिनोट करते हैं, उसमें AT।
The acetyl unit is then transferred from ACP to cysteine residue of the enzyme. Thus, ACP sites fell. In the second step, the enzyme malonyl कोएंजाइम में ACP ट्रांसफर मीन्स जो MT जो एंजाइम था उसमें जो फैटी एसिड सिंथेज में जिसको हम MT से एब्रीवेट कर रहे हैं वो क्या करेगा, दैट ट्रांसफर्स मेलोनेट फ्रॉम मेलोनाइल कोएंजाइम में, जो मेलोनाइल ग्रुप है मेलोनाइल कोएंजाइम में उसको ट्रांसफर करेगा ACP पे. In the third step, the acetyl unit attached to cysteine is transferred to the malonyl. जो acetyl unit attached थी cysteine पे वो acetyl unit and जो malonyl group attached था ACP पे उन दोनों में क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी. ये दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन करेंगे तो जो मेलोनाइल है वो यहाँ पे क्या लूज करेगा, अपना CO2 को, एक जो कार्बन है उसको एज ए CO2 लीव कर देगा, which was added by acetyl coenzyme में कार्बोक्सिलेज. जब स्टार्टिंग में acetyl coenzyme में कार्बोक्सिलेज ने उसको ऐड किया था. The decarboxylation is accompanied by loss of free energy which allows the reaction to proceed forward. यहाँ पे क्या है, जब decarboxylation होगा तो कुछ एनर्जी निकलेगी और उसी एनर्जी की वजह से जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड मूव करेगी. और दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय बीटा. हियर दिस इज बीटा कीटोएसाइल ACP सिंथेटेज और KS enzyme. We can also abbreviate this as KS. In the fourth step, this beta ketoacyl ACP reduction. Next step is reduction step. जो वहाँ पे एसिटाइल और मेलोनाइल ग्रुप के फॉर्मेशन से क्या बना था, वहाँ पे बीटा कीटोएसाइल ग्रुप. तो वहाँ पे जो कीटोएसाइल ग्रुप है बीटा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप में उसको रिड्यूस कर देगी. जो इसमें बीटा कीटोएसाइल रिडक्टेज है वो क्या करेगा, इस कीटोएसाइल ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप में रिडक्शन कर देगा. और यहाँ पे जो एनर्जी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स है वो कहाँ से आएंगे, NADH से, और बन क्या जाएगा NADPH से. हमने बात की थी ना जब कैटाबॉलिक रिएक्शंस हम रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या था, NADH था. यहाँ पे क्या है, NADPH है और यहाँ निकलेगा क्या, NADP+. तो जो मोस्टली कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनमें यूज होता है NAD+ और NAD और यहाँ पे NADP. Next, in the next step, beta hydroxyacyl ACP undergoes dehydration step, and during this dehydration step, a molecule of water is eliminated, and due to elimination of this water molecule, a double bond is introduced between alpha and beta carbon. A second NADPH dependent reduction. Next step is also a reduction step, and this is catalyzed by enoyl ACP reductase. We abbreviated this as ER in fatty acid synthetase. To produce acyl ACP, the 4 carbon unit attached to acyl ACP. तो यहाँ पे क्या है, एक 4 carbon unit बन गई है acyl ACP, that is butyryl group. द एंजाइम पाल्मिटाइल थायोएस्ट्रेज सेपरेट. उसके बाद क्या होगा, यही जो स्टेप्स हैं, जो यहाँ से जो स्टेप्स हैं फोर्थ स्टेप वो रिपीट होंगे वापस ये 6 स्टेप तक, जब तक हमारा जो डिजायर्ड है, सपोज करो हमने यहाँ पे पाल्मिटेट जो 16 कार्बन एटम है वो दिखाया हुआ है, तो जब तक उसकी सिंथेसिस उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे सिंथेसाइज नहीं हो जाते, यहाँ पे अभी 4 हैं, तो जब तक 16 नहीं सिंथेसाइज हो जाती ये साइकिल्स क्या हैं, रिपीट होती रहेंगी. The enzyme palmitoyl thioestrase separate palmitate from fatty acid synthetase. जब palmitate synthesize हो जाएगा तो उस टाइम पे जो palmitoyl एस्ट्रेज एंजाइम है वो उसको फैटी एसिड सिंथेटेज से रिमूव करेगा, एंड दिस कंप्लीट द सिंथेसिस ऑफ पाल्मिटेट और फैटी एसिड सिंथेसिस. समरी ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस. ऑफ द 16 कार्बन्स प्रेजेंट इन पाल्मिटेट, जो 16 कार्बन्स प्रेजेंट हैं पाल्मिटेट में, ओनली 2 कम्स फ्रॉम द एसिटाइल कोएंजाइम और ए, एंड 14 रिमेनिंग कम्स फ्रॉम मेलोनाइल कोएंजाइम ए. जो स्टार्टिंग के 2 हैं सिर्फ वही आते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए से. जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो सिस्टीन रेजिड्यू के साथ बाइंड होता है ना, ये सिर्फ वही 2 आते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए से. अदरवाइज जो 14 कार्बन्स हैं वो किससे आएंगे, वो जो साइकिल रिपीट होंगे बार बार वो कहाँ से आएंगे, मेलोनाइल कोएंजाइम ए से.
और वो ये मेलोनाइल कोएंजाइम ए भी किससे बनता है, ये भी बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से। तो डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम ए से 2 आएंगे और 14 मेलोनाइल कोएंजाइम ए से, वो भी अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही सिंथेसाइज होता है। सो ओवरऑल रिएक्शन ऑफ पाल्मिटेट सिंथेसिस इज, यहाँ पे 16 कार्बन एटम रिक्वायरमेंट है, तो इट मीन्स क्या है, 18 एसिटाइल कोएंजाइम ए की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज इन वन एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन्स आर प्रेजेंट देयर। सो 8 इंटू 2 16, तो 16 कार्बन एटम का यहाँ पे सिंथेसाइज होगा। 7 ATPs आर रिक्वायर्ड, 14 NADPH and 14 H plus. This will give result 16 this will give 16 carbon fatty acid palmitate plus 8 coenzyme A plus 7 ADP plus 7 inorganic phosphate and 6 water molecule. Thanks.